हाँ जी, तो आज का टॉपिक अपना इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल है ना। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹੈ इंटरनल रेजिस्टेंस ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੈੱਲ क्या ਹੁੰਦਾ है एक अपने ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ बैटरी भी की बनने एक सेल बनने बेसिकली च दो अपने कोले इलेक्ट्रोड्स होंगे ने एनोड ते कैथोड है ना। एक ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਲਿਕੁਇਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸੋਲਿਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਬੈਟਰੀ ਸੋਰਸ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੈਬ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਐਲੂਮੀਨੇਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਬੈਟਰੀ ਐਲੂਮੀਨੇਟਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ 2 ਵੋਲਟ 4 ਵੋਲਟ 6 ਵੋਲਟ 8 ਵੋਲਟ 10 ਵੋਲਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਰਿਕੁਆਇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਲਟੇਜ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਵੋਲਟ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਸੀ ਏਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਡੀਸੀ ਤੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਚਾਰਜਰ ਵੀ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਬੋਲਦਾ ਡੀਸੀ ਚ ਤੇ 220 ਵੋਲਟ ਤੋਂ 5 ਵੋਲਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਵੋਲਟ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 5 ਵੋਲਟ ਏਸੀ ਚ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਡੀਸੀ ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਫਿਰ 5 ਵੋਲਟ ਏਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡੀਸੀ ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦਾ। ਡੀਸੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਏਸੀ ਚ ਹੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਅਪ ਜਾਂ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਏਸੀ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਏਸੀ ਚ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰੰਟ ਪਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਆਫਰ ਕਰੂਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਏ ਸੈੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦੇ ਆ the resistance offered by a cell when current is passing through it that is called the internal resistance of a cell। ਉਹ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਪੁੱਤ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਪਾਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਇਆ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। दूसरा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इट्स इलेक्ट्रोलाइट। जिन्ना वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा जिन्ना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा उन्ना ज्यादा ठीक है ज्यादा इंटरनल की होगा रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ਨੂੰ ਆਪਾਂ कैपिटल R ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਣਾ ਬੱਚੇ स्मॉल r ਨਾਲ। इट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਐ ਨਾ ਕਰ ਇਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਖਰਾਬ ਉਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਡਰਾਣਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਪੈਸੇ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਤੇਰੇ ਐ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਹੈ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀ ਆਊਗੀ ਅੜਚਨ ਆਊਗੀ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਜੋ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਬਾਕੀ ਥੋੜਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਲਸ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਤੇ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स किदे विच डिस्टेंस ते है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆ ਕੀ ਹੈ ਐਨੋਡ ਹੈ ਆ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕੈਥੋਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਨਾਇਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 네ਗੇਟਿਵ ਆਇਨ ਕਟਾਇਨ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ। ਕੈਥੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 네ਗੇਟਿਵ ਐਨੋਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤੇ ਚਾਹੇ ਐਨੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਥੋਡ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ठीक है। दोनों विचकार दा डिस्टेंस है d ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿੰਪਲ r ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ l। r ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ l। ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਗਾ ਉਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਇਟ ਵੇਰੀਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਐਜ਼ ਦਾ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡਸ ਇਮਰਸ ਇਨ ਦਾ ਕੀ ਆ ਪੁੱਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਪਲੇਟ ਆਪਾਂ ਇਮਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ठीक है। ये प्लेट आप की है इमर्स हुई है तो यह एरिया भी आ गया अपने को एवं प्लेट इधर है पुत तो ये विचकार का सारा की हो गया है कॉमन एरिया हो गया क्या हो गया कॉमन एरिया।
ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ R ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਕਿਸੇ ਦਾ E, ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੋ ਜਾਏ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਆਫ इलेक्ट्रोड्स इमर्स इन द इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा इट इंक्रीज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब एरिया दे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। इट इंक्रीज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर दे की हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। जे टेम्परेचर घटाओगे ठंडा करोगे इलेक्ट्रोलाइट को है ना, तो ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ इंटरनल रेजिस्टेंस की हो जाएगा वो तो बढ़ जाएगा। जे हल्का जिहा गर्म होगा अपने कोले तो की होगा वो इंटरनल रेजिस्टेंस की हो जाएगा घट जाएगा। तो इस तरह लिख लिया करो ताकि पेपर च अपन याद करना सौखा रहता है, कल्ली कल्ली लाइन अपन नहीं उस तरह याद कर सकते। तो पहली गल तो है इलैक्ट्रोलाइट की नेचर बेसिकली डायरैक्टली प्रोपोर्शनल के अंदर ही आ जाती है, मैं तां करके नहीं पाया सीगा क्योंकि जी इंटरनल चीज़ होंगी है वो हमेशा कदों अपने को आती है जो आप डायरैक्टली प्रोपोर्शनल की करते हैं खोलते हैं, जो कॉन्सटेंट आता है बेसिकली कॉन्सटेंट जो होंगे वो कंटेन कर रहा होंगे। कॉन्सनट्रेशन तो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस से डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉमन एरिया दे की है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर दे भी की होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। की नेचर सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल की पुत्र इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। आगे देखो अपा रिलेशन पेपर काफी बार आया है, रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। देखो बता सब तो पहले तो अपने सर्किट बना लेना है, आपने को रेजिस्टेंस है, आपने को सैल है, ठीक है सैल को कनेक्ट करता अपने इतने आप की लगा लो एक की बना रहे और एक थोड़ा प्रैक्टिकल जो देखी भी है, ठीक है थोड़ा वैसे भी एक्स्ट्रा की भी दिखा देंगे। तो ये आप की लगाई है इन की बोलते हैं आप जे मैं विचाले देखो डॉट मार रखा मैंने ध्यान दो ब्रैकेट के डॉट मारा हुआ है, तो यह मतलब यह है भी की क्लोज्ड है, की है क्लोज का मतलब नहीं सर्किट बंद है, मतलब सर्किट की हो गया चल पिया रास्ता जोड़ता खब्बे का सज्जे जोड़ता रास्ता चल पिया। जे मैं इस तरह छापा इसका मतलब की ओपन है, की ओपन का मतलब सर्किट ओपन हो गया। सर्किट ओपन का मतलब ये नहीं है कि सर्किट जो चलन लग गया, सर्किट ओपन का मतलब है सर्किट खोलता तारा की करते हैं खोलते हैं फिर कोई करंट चलूगा नहीं, कोई करंट निकलता। तो की इतने क्लोज है अपने को, ठीक है भाई। और जदों मैं सर्किट कोई ओपन नहीं कर जो सर्किट ओपन सीगा कोई करंट जो नहीं कर रहा फ्लो नहीं कर रहा सी, मैं ये दो सिरे विचकार एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। क्या नाम है नाम तो थोड़ा दस रहा है कि माप रहा होगा पोटेंशियल मापदा है ना। तो जो सर्किट ओपन है पहले तो दो सिरे विचकार की मापया पोटेंशियल मापया। ये मीटर की खासियत यह है कि यह सैल विचों कोई भी करंट की नहीं करता ड्रा नहीं करता, इस कोई करंट नहीं लेंदा क्योंकि जे इन्हें इस करंट कट लिया सैल चो करंट याद होगा जो आप ईएमएफ ते टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से डिफरेंस कितने सीगे, ईएमएफ ते टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से डिफरेंस कितने सी की डिफरेंस सीगा भी ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ बैटरी या सेल व्हेन सर्किट इज ओपन। ते टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कदों कहंदे सी आपां it is the potential difference between the two electrodes of a cell या two terminal of a cell when circuit is closed। ठीक है क्लोज का मतलब होता है भी जदों जो करंट ड्रॉ कर रहे हैं आप, ओपन का मतलब जदों कोई करंट की नहीं कर रहे ड्रॉ नहीं कर रहे, क्योंकि जो ओपन है जो कोई करंट नहीं आ रहा कोई निकल नहीं रहा। पर यह ऐसा इंस्ट्रूमेंट है ये आप कनेक्ट भी करते हैं पर फिर भी ये तो कोई नहीं लेता करंट नहीं लेता। ओके 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 थैंक यू। हाँ जी जो पोटेंशियोमीटर है पुत्र ये एक पापा की तरह है। हम पापा थोड़े तो पैसे तो नहीं लेंगे, पापा थोड़ा पैसे किने देंगे ने है ना। तो जो भी पापा थोड़ा कनैक्ट होंगे जब भी पापा को जाओगे कुछ ना कुछ लैके आओगे चाहे पैसे चाहे जुत्तियां, एक चीज मिलूगी कि नहीं मिलूगी है ना, पैसे प्यार चाहे जुत्तियां। थोड़ा इन्हों का खतरा रहता वैसे तो कुछ भी मिल सकता किसी टाइम मैं डिपेंड होना तुम की कर रहे हो। तो एवं पोटेंशियोमीटर जोड़ा है ये ज्यादा तकड़ी बैटरी आपके को रखता है, ये मेजरिंग करने वाला इंस्ट्रूमेंट है, पढ़ा गया इस बारे आप। ये पोटेंशियल मेजर करता है पर यदि आपकी बैटरी ही बड़ी होंगी है
ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਬਟ ਮੈਥਡ ਇਹ ਜਿਹਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕੀ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਟਰਮੀਨਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਾਪ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ EMF। ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਮਾਪਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ EMF ਮਾਪਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਪਨ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਕੋਈ यूज नहीं था, सिर्फ पोटेंशियल मापन लिया, ताकि तो नाम मीटर है। मीटर मतलब क्या होता है, मापन वाला। ये तो सिर्फ मापन वास्ते यंत्र है, जिवें वोल्ट मीटर एमीटर वो की करते हैं, सिर्फ मापते हैं, तभी मापदा है। पर ये आम वोल्ट मीटर नालों की फर्क है, मैं और वोल्ट मीटर भी ला सकता सी, पर वोल्ट मीटर क्यों नहीं लगाया मैं, क्योंकि वोल्ट मीटर ने करंट ले लेना सी, वो इस सैल के जवाक की तरह काम करता, जवाक ने तो पैसे लेने ने। ठीक है, उमें है। पहले बैरिए मेरी गल के नहीं, शाबाश। तो पोटेंशियोमीटर लाया यह जिहा डिवाइस है जिहड़ा इस कोई भी करंट ड्रा करे बिना ਇਹਦੇ ਦੋ ਸਿਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਮਾਪਦਾ EMF। ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਓਮੀਟਰ ਚੱਕਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਣਾ ਲਗਾ ਦਿਓ, ਚੱਕਣਾ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਹੈਨਾ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਮਾਪ ਦੋ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਲਾ ਦੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, क्योंकि इसे कोई रेजिस्टेंस है, जिन्नी वोल्टेज पैदा कर रहा होगा उन्नी वोल्टेज की कर रहा होगा, खा रहा होगा। वैसे भी देखो आ वाला पॉइंट आ वाला पॉइंट की ने विचाले कुछ हैगा नहीं, तो दोनों का पोटेंशियल की होगा सेम। आ वाले पॉइंट आ वाले पॉइंट इन्हें विचाले कुछ नहीं हैगा, कोई आप रेजिस्टेंस नहीं लाया, सिर्फ की है कि तो जस्ट सर्किट जोड़ तोड़न का काम कर रहे हो, कुछ नहीं। तो ਇਹਦਾ भी पोटेंशियल की ਹੁੰਦਾ सेम ਹੁੰਦਾ है, यानी कि चाहे पोटेंशियल ਇਹਦੇ क्रॉस माप लो चाहे ਇਹਦੇ क्रॉस माप लो, दोनों सेम ही है। पर यह हुण की है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या पता ये वो पोटेंशियल है जिहड़ा इहनूं मिलूगा, जिहड़ा एक्चुअल जिहने पैदा किया कितना पैदा कर रही है E, पर एक्चुअल जिहनूं कितना मिल रहा है V। दैट मींस कुछ ना कुछ अपन पता है कि V इज ऑलवेज लेस देन E। मैं पर तुहानूं एक केस दस्सिया सी, जदों V E नालों ग्रेटर हुंदा है, स्पेशल दस्सिया सी क्लास के अंदर, जदों V E नालों ग्रेटर हुंदा है। वेरी गुड, जो आप चार्ज कर रहे हैं, सैल में चार्ज कर रहे हैं, आप चार्जिंग लाने ना मोबाइल को लाने आप चार्जिंग पे, उस टाइम वो V वो E नालों की होंदा पुत ज्यादा होंदा, जो फुली चार्ज हो चुका हो। ठीक है, उस तो पहले ही मतलब टाइम। तो ये अपने को सिस्टम आ गया, समझ गई गल। ये जो V है ये E नालों घट होंदा है, जो सर्किट कोई कनैक्ट नहीं किया वो कितना दे रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रहा है E, पर जो कनैक्ट करता फिर कितना दे रहा है V। ये V E नालों घट क्यों है, क्योंकि देखो V तो ये क्रॉस ड्रॉप हो रहा है, इन्हें पैदा किया E, ये कितना खा गया V जिहड़ा इन्हें पैदा किया, ते बाकी कित्थे गया, बाकी खुद खा गया पुत, सैल भी खुद खा गया। हुण आपां होटल के ढाबे तरह समझांगे, एक होटल का ढाबा अपने कोले, ठीक है, उत्थे 50 इंपलॉय की कर रहे हैं, होटल के अंदर काम कर रहे हैं, उत्थे 500 की आए क्लाइंट आए या विजिटर्स आए उत्थे रहन, जब मान लो उन्होंने 500 रोटियां बनाई, सपोज कितने रोटियां बनाई 500, ठीक है, 400 रोटियां तो उन्होंने विजिटर को देतियां, पर 100 रोटियां आप खादियां। हुण जिहड़ियां आप खादियां होटल वाले नूं तां की करना पऊगा, पे करना पऊगा। होटल ने तां की बनाया, होटल ने तां कितनी रोटियां बनाईयां 500 रोटी बनाई, इन्हें 500 रोटी बनाई, वो ई है। बाहर कितनी मिली, लोगों को कितनी मिली, खुद कितने खा गए 100, ये उवें ही है। तो वो जो 100 खाया उन्होंने बोलते हैं आप इंटरनल खपत ऑफ द होटल, उन्होंने क्या बोलेंगे आप इंटरनल खपत ऑफ द होटल, यही हुई ना, होगी कि नहीं हुई, इंटरनल खपत होगी। एवं है जिहड़ा करंट है ये विच दी पास करता होया, इन्हें कितना ड्रॉप करता V इज इक्वल टू IR। हुण ए चों भी तां ओही करंट पास कर रहा होगा, I कर रहा होगा नहीं कर रहा होगा, ये भी कुछ ना कुछ की कर रहा होगा, ड्रॉप कर रहा होगा। तो कितनी ड्रॉप कर रहे हैं, ये कर रहा है I इंटू स्मॉल r, I इंटू क्योंकि स्मॉल r की है इंटरनल रेजिस्टेंस। जो 50 बंदे आ बंदे किन्ने सी, मान लो ये बंदे मान लो सीगे 200 जिन्होंने रोटियां खाइयां 400, इन्हां दे बंदे किन्ने सी मान लो 50 जिन्होंने रोटियां खाइयां 100, तो 400 प्लस 100 कितना बन गया 500। तो 500 बना रहा सी, बना 500 रहा, पर बाहर लोगों को तो नहीं 500 पहुंच रही, बाहर लोगों को तो कितने पहुंचिया 400। मैं क्या समझ आ गई होगी, एग्जाम्पल ठीक है। बाकी थोड़े दिमाग से कितना जैसे घरे रख रहे हैं, रोटियां बारे सोचने उत्थे जाके फिर पीजे बर्गर है ना, नहीं या पनीर शाही पनीर बारे सोचने वो गल वक्री है। सो अपने को फार्मूला एक्चुअली की बनता पुत्र कि जो अपने को क्या होंगे कि E इज इक्वल टू क्या होंगे V प्लस IR, V प्लस IR।
E इज इक्वल टू क्या होगा V प्लस आई आर। जस्ट सिंपल अपन पहले लिख सकते हैं E इज इक्वल टू V प्लस V डैश, थोड़ी बुक के अकॉर्डिंग करा देना। V डैश मतलब जेड़ा पोटेंशियल ਇਹਦੇ क्रॉस ड्रॉप होया, V मतलब जेड़ा पोटेंशियल ਇਹਦੇ क्रॉस ड्रॉप होया। सर्किट च दो पोटेंशियल ड्रॉप होए V प्लस V डैश, वो दोनों कितों आए होने E तो, ठीक है, कितों आए होने तो E इज इक्वल टू V प्लस V डैश। ਤੇ V डैश की जगह तो मैं पहले दसता की पता अपने की पता I इंटू स्मॉल r, इस V की जगह ते की पावांगे I इंटू कैपिटल R, इस जगह ते पावांगे I इंटू स्मॉल r। समझ आ रहा पुत्र? हुण देखो कढना की अपने स्मॉल r दा बनाना रिलेशन अपने, तो I चो कॉमन कढ दो, कितना बच गया अपने कोले r प्लस कितना बच गया r, और अपन दा रिलेशन पुत्र चलो पहले I दा रिलेशन बना देना अपन बुक दे अकॉर्डिंग। सो I इज इक्वल टू कितना बन गया E अपॉन R प्लस R। इन्ना करंट सर्किट विच की कर रहा होगा पास करदा आपको। जदों आपां इंटरनल रेजिस्टेंस नु की करके चलदे आ कुछ इंपोर्टेंस दे के चलदे आ, पर ज्यादातर केसेस की होगा आपां जदों न्यूमेरिकल कर रहे हुंने आ ज्यादातर कुछ आपां इंटरनल रेजिस्टेंस ना ही तुहानू दिता होया होगा ना ही उन्होंने कोई आपां इंपोर्टेंस दे के चलदे। इस तरह सीधे फार्मूला केड़ा चलदा है V इज इक्वल टू आई आर, बट एक्चुअल्स की है कि I कित्थों कैलकुलेट हुंदा है जिन्ना सेल की दे रहा है EMF दे रहा है डिवाइड बाय टोटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल। कैपिटल R केड़ा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, स्मॉल r केड़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस। आई होप समझ आ रहा होगा थानू। हां जी, हुन बेसिकली आपां ने पता R फाइंड करना सी स्मॉल r, ठीक है, जो आपां ने क्योंकि आपां फार्मूला कादा कर रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस दा, तो आपां ओनू फाइंड करना है। तो आपां ओनू किवें फाइंड करना बड़ा सिंपल है, इत्थों देखो आवड़े रिलेशन तो देखो E माइनस V अपॉन किया गया I दैट इज इक्वल टू कितना आ गया R। कि मैं लगा पता कि नहीं V नो आपां पहले इधर ले आए, V किस आ गया नेगेटिव, उधर बच गया गला आई आर, I इतना मल्टीप्लाई है तो किस आ गया डिनोमिनेटर डिवाइड से अपने को E माइनस V अपॉन किया गया I दैट इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चे अपने को R। अलग-अलग कट के समझ कर सकते हैं पोटेंशियल का अलग-अलग कट के, हां प्लस नहीं अलग-अलग कर लो चाहे कोई दिक्कत नहीं। अब पता R फाइंड करना, R फाइंड करना फार्मूला लिख रहा है मैं तुम्हें, ठीक है, तो R फाइंड करना फार्मूला क्या लिखा है E माइनस V अपॉन I इनटू कितना आ गया R, ठीक है। हले अपने I बिना I तो जकला V ची करना किवें करांगे, अपन पता है V इज इक्वल टू कितना होगा पुत्र IR, देन I इज इक्वल टू कितना बन गया V अपॉन R, देन इथे फिल कर दो कितना बन जाएगा E माइनस V अपॉन V अपॉन R। हुन आ देखो एदा दुश्मन है ते एदा दुश्मन है, दुश्मन का दुश्मन की होंदा दोस्त, एदा मतलब कितने जाऊगा ऊपर जाऊगा, तो की बन गया इक्वल टू R सीगा, दैट मींस की बन गया अपने कोले E माइनस V अपॉन V इनटू कितना बन गया बच्चे R दैट इज इक्वल टू कितना आ गया स्मॉल r। तो जेड़ा है E होगा, जेड़ा है E होगा ध्यान सुनो पुत्र, जेड़ा E होगा ये तो आपां मापांगे पोटेंशियोमीटर नाल, कहंदा ना मापांगे। जेड़ा V होगा इस सिंपल आपां कहंदा ना माप सकदे हां वोल्टमीटर नाल। प्रैक्टिकल वाले बच्चों ने तो मतलब देखा हैगा, सो काफी अच्छे प्रैक्टिकल स्टार्ट किया हमने अपने प्रैक्टिकल कर रहे हैं जेडे कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट ने उत्ते एक V लिखा होंदा है वो वोल्टेज मापदा है, जिथे A लिखा होंदा है वो, ठीक है जी। बाकी स्क्रू वाज नाल वो भी देखा तुसीं कि डायमीटर किवें की करदे आपां मेजर करदे हां, राइट। तो MF दा कैपिटल R है वो अपन पता ही होगा भी कितना रेजिस्टेंस में उत्ते रखा हैगा। V आपां वोल्टमीटर नाल माप लांगे, E आपां कहदे ना मापांगे पता पोटेंशियोमीटर नाल, कहदे ना मापांगे। वो एडा बड़ा डिवाइस है जिहदा थोड़ा टेबल है, एडा चौड़ा डिवाइस है, ठीक है, लंबा गैस ना सॉरी एडा लंबा डिवाइस है, चौड़ा ओदा जिन्नी कि एक गिट्ठा अपनी इन्ना चौड़ा डिवाइस होंदा, लेंथ ते मैं तुहानू डिमेंशन वाइज दसना। अदरवाइज कुछ नहीं है, चार तार सिर्फ लंबे लोड चापा घुमाई हुई है, तां करके वो लंबाई लेंथ ज्यादा है। पर इसकी खासियत की होंदी है कि इहदे कोल अपनी बैटरी की होंदी है ज्यादा ताकत वाली होंदी है, ते किहदे नालों जिहदे अक्रॉस आपां की कर रहे हैं माप रहे हैं, जिहदा EMF की कर रहे हैं आपां माप रहे हैं। पहले मेरे गल के नहीं भाई, चलो अगे देखो। आगे करेक्टिस्ट कॉज वो सेल रन लो कोई लोड नहीं अपने को। इधर न्यूमेरिकल प्लीज नोट डाउन करो, न्यूमेरिकल नंबर 75 76। एक न्यूमेरिकल करो 85 होनी प्लीज, 85 न्यूमेरिकल देखो। मैं पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, पिक्चर थोड़े सामने ड्रॉ की है, मैं फिर भी ड्रॉ दोबारा कर देना, प्लीज करो सॉल्व इसको। हालांकि इतना कोई ज्यादा रिलेशन नहीं, बट ट्राई टू सॉल्व।
अपने को करो प्लीज, बोलो ना। पिक्चर ध्यान ना समझो, सुने दे नाल दा न्यूमेरिकल कराया हुआ ना। ओके, 1 वोल्ट की बैटरी लगाई है, सारे 1 ओम के रेजिस्टेंस ने। इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा कितना दे रखा 2/3 ओम, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है 2/3 ओम। की फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो करंट का फार्मूला आप हुणे देखा सीगा। करंट का फार्मूला की सी अपने को I इज इक्वल टू कितना सीगा E प्लस V अपॉन कितना सीगा, हाँ जी सॉरी, I इज इक्वल टू E प्लस V नहीं सीगा, E अपॉन R प्लस स्मॉल r, तो फार्मूला सीगा अपने को। हाँ जी, तो E जी हैगी अपने दे रखी पता अपन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट E दे रखी अपन। EMF लिखा स्पेशल थे, EMF 1 वोल्ट है, इंटरनल से 2/3 ओम है। आई फाइंड करना आप आपदा करो कापियां ते। पहले तो ऊपर सर्किट का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R फाइंड करवा वाला, कैपिटल R किहड़ा है, ਇਹਦਾ टोटल रेजिस्टेंस। ये मैं तुहानू कराया सी कल न्यूमेरिकल, शनिवार सैटरडे नूं करा के गया सी न्यूमेरिकल दे नाल दा। सर्किट मैं दस्सिया सी भी इत्थे 2 तरह सर्किट हुंदे ने, एक दा टपाया हुंदा, टपाया मतलब कनैक्ट नहीं हुंदा, एक कनैक्ट किया होया। की फर्क सी दोनों च? घरे बह के जब आप घंटा लाओगे बड़े आराम से सीख लाओगे कितों सर्किट पैरेलल हो रहा है, कितों सर्किट की हो रहा है, सीरीज हो रहा है। इतने 2/3 दिता, कुछ जान के दिता 2/3, इन्होंने जान बुझ के दिता 2/3 थोड़ा सौखा करने लिए। आंसर मैं दस देना, वैसे यू को ट्राई देयर। हाँ जी, सो बन जाएगा अपने को V अपॉन R, दैट इज 1 वोल्ट अपॉन कितना आ गया 2/3 प्लस 1/3 कितना आ गया 3/3, दैट इज द 3 एम्पेयर, नहीं 3/3 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर का आंसर आ रहा है मेरे अकॉर्डिंग। हाँ जी।